You lose touch from reality. It is like psychosis. The classic symptoms are, I am God, I am everything. आप बहुत ज़्यादा हाई पे चले जाते हो. I would love for the podcast to start with you, in your words, defining bipolar disorder. And क्या होता है ये? Neeraj, as the word describes, bipolar, two ends of the pole, too high and too low. So this is the most basic statement in which I can describe bipolar disorder. या तो आप बहुत हाई चले जाते हो या बहुत ज़्यादा लो चले जाते हो. High is known as manic, being in mania, and the lows, like you said, clinical depression. So it's a two-edged sword. So that is how I would like to describe bipolar disorder. So the follow-up question that I would have, just to make it more simpler for anyone, कि अगर आप उसका हाई को एक तरह से डिफाइन करो और उसके लो को एक तरह से डिफाइन करो कि क्या फील करता है बंदा, मतलब एक हाई एपिसोड क्या होता है, उसमें दोनों चीज़ें होती होंगी, राइट? Correct. So as they say, a manic episode. You lose touch from reality. It is like psychosis. The classic symptoms are, I am God, I am everything. Okay. आप बहुत ज़्यादा हाई पे चले जाते हो. In the sense you lose touch from reality. Hallucinations आपको होती हैं. You are in your own world at that time. So that's how I would describe mania. Okay. And then when you crash from a manic episode, you go into the depressive spectrum of bipolar disorder, which is obviously, it can last for 6 months, 1 year, different things for different people. But what is clinical depression, what we say. So this is how I would describe the mood swings in bipolar disorder. Okay. And if I can ask you, how long does this last? Like it can last from 6 months to 6 days. It can last from 6 days to 6 months, depending if you're getting the right help or not. It's different for different people. I remember first time when I had my first episode in 2015, my manic episode lasted around 1 month, which is a very long time to stay in altered reality. Whereas when I went into depression after that, because you don't know what has hit you, ये हुआ क्या है मेरे साथ, I think my depression lasted good 1 year after that. More than 1 year. Okay. So I wanted to understand this कि I think when you mentioned in the offline call with this कि इसको hyper and hypo बोलते हैं. So bipolar disorder is also of different kinds, bipolar 1 and bipolar 2. In bipolar 2 you only reach hypomania. इसमें आपका reality से touch lose नहीं होता. आप excited feel करते हो, happy feel करते हो, and then you go low. With bipolar 1 your mood starts going up. आपकी sleep decrease होती रहती है. एनर्जेटिक ऑल द टाइम, आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, आपको ऐसा लगता है कुछ भी अचीव कर सकते हो. तो ऐसा जब पहली बार कुछ होता है तो ऐसा आपको कुछ लगता ही नहीं है ये कोई बीमारी है. आप तो बहुत अच्छा फील कर रहे हो, यू फीलिंग ग्रेट, यू फीलिंग यू कैन अचीव एनीथिंग. बट वो ऊपर जाते 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 जब वो मैनिक एपिसोड बन जाता है, दैट्स व्हेन ऑल द ट्रबल स्टार्ट्स, बिकॉज यू लूज टच फ्रॉम रियलिटी. तो आपको हेलुसिनेशंस होने लगती हैं, आपको ये लगने लगता है भगवान हो, आप कुछ भी कर सकते हो. अगर बारिश हो रही है तो आपको ऐसा लगेगा मैं करवा रहा हूँ ये बारिश. Imagine a person to be in that state. And then when that manic episode ends, I think that's the toughest part, because you're coming back to reality. It's like आप गाड़ी चला रहे हो 200 miles per hour and you smash into a wall. Correct. Now what would happen to that car? The same thing happens to your brain at that time. इसलिए उससे निकलने में इतना वक्त लग जाता है. मतलब I think मैंने because of Honey Singh this got a lot of because of Honey Singh, yes. Because उनका मैंने डॉक्यूमेंट्री देखा था, तो he was afraid of running information. Yeah. He used to be very scared into his room, and then he used to feel कि पता नहीं कौन, he would not take a call, he would not paranoia हो गया था. He would not see any running information, like TV screen, mobile screen, anything like that, and he used to feel like somebody is trying to kill him. Like that is a version of bipolar disorder as well. Correct. अब मेरा वो जो manic episode, like I said, can last for 1 month, 2 months. Like you mentioned, after Honey Singh coming out with his story, लोगों को पता लगा है. उनके symptoms शायद थोड़े different रहे होंगे, because he suffered for 7 years. Correct. He was locked in a room after all that fame. तो उनका paranoia was probably of a different kind, but yes, it was bipolar disorder. So I want to come to this part where you mentioned कि there was a time when you were distributing money on the road. But before you answer that question, I would love for you to, in your own words, describe कि
ये पार्ट जिंदगी का कैसा था, मतलब यू नो हाउ डिड यू व्हेन यू सी नाउ कि यहाँ से यहाँ मैं कैसे पहुँच गया? That's a good question, Neeraj. In fact, before coming for this podcast, we had an offline discussion. तो मैं परसों बैठ के सोच रहा था कि ज़िंदगी का वो भी एक वक्त था जब ऐसा हुआ था. अब पीछे मुड़ के लगता है यार वो मैं ही था. हैरानी होती है अपने आप पे कि ऐसा भी हुआ था. क्योंकि जब सब ठीक जा रहा होता है तब आप भूल जाते हैं, नहीं सोचते. बट मेरे को नाइटमेयर्स अभी भी आते हैं उस वक्त के. और मैं अपने आप को बहुत ही लकी महसूस करता हूँ कि मैं उसे निकल पाया. क्योंकि आई जॉइंड अ सपोर्ट ग्रुप. उस सपोर्ट ग्रुप में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी जॉब नहीं कर पा रहे और अभी भी सफ़र कर रहे हैं. तो मैं अपने आप को उस वे में बहुत लकी महसूस करता हूँ. जो इंसिडेंट आप बात करें कि आई वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी ऑन द रोड, सी लाइक आई सेड, अ मैनिक एपिसोड यू लूज टच फ्रॉम रियलिटी. सो इन माई माइंड आई वॉज गॉड. और उस टाइम पे अब मे बी आई जस्ट वॉन्टेड टू इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम दिस प्लानट. जितना भी नोबल थॉट था, बट स्टैम्पीड हो गई थी ऑब्वियसली. मैं 500 रुपए के नोट बांट रहा था. नॉट दैट आई एम दैट रिच, बट इन माई माइंड यू वर, इन माई माइंड आई वॉज अ बिलियनर एट दैट टाइम. तो वो आपको रियलिटी जब हिट करती है, एपिसोड से बाहर आते हो, तब पता लगता है जो नुकसान हुआ, पैसों का कितना नुकसान हो गया. इसलिए बाइपोलर डिसऑर्डर जो पेशेंट्स है वो कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स अपने पास नहीं रखते. क्योंकि क्लासिक सिम्टम है दैट यू गो ऑन अ स्पेंडिंग स्प्री beyond your means. So yeah. So that's a very big key takeaway for any person going through this thing. Yes. Please, take care of your finances. If you've had series of episodes, don't have debit and credit cards on you. Give it to someone you trust. You were not. If I can ask you two questions, what was your age at this point of time, and were you married at that point of time? No. When my first episode happened, I had just turned 30. And at an age where people are flourishing in their careers, in their personal lives. So that I had just turned 30, and that was the time I had my first episode. I was not married at that time. I was at the peak of everything in life. So how much would have been the time spent? मतलब कितना समय हो गया होगा जब ये वाला हादसा हुआ? You're 30, you're spending and you're doing this thing. तब तक ये awareness आई थी क्या कि there is something going on with me? Was there any awareness? और कितना टाइम हो गया था? Like, what do you think? How long were you in this bipolar? So, I'll tell you. December 2014, I turned 30. January 2015, I started going into hypomania. मेरी productivity increase हो गई. I would be happy, I would be energetic. ऐसा कोई symptom नहीं जिससे आपको लगे कि something is wrong. और आपके आसपास वालों को भी लगता है तो खुशी है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, काम कर रहा है और इतना एनर्जेटिक है. बाय मार्च 2015 दैट हाइपोमेनिया रीच्ड मैनिक एपिसोड. वहाँ से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई व्हेन आई लॉस्ट टच विद रियलिटी. सो आई वुड ट्रबल माई फ्रेंड, सेंडिंग देम अगली ईमेल्स, डूइंग ऑल दोज थिंग्स दैट यू मेंशन्ड. आई थिंक मैं पूरे एक भारत भ्रमण पे निकल गया था उस टाइम पे. अच्छा. वो भी फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास टिकट्स पे, ऑन माई क्रेडिट कार्ड. तो ये सब करते करते 1 महीने बाद अप्रैल में आई क्रैश्ड. और वो जब क्रैश हुआ, आई स्टिल गेट गूज़बम्स इफ आई इवन थिंक अबाउट दैट टाइम. बिकॉज सी मैनिक एपिसोड इज लाइक यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यू आर फ्लाइंग, एंड व्हेन यू क्रैश इट्स डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ द बेड एज वेल. आई वॉज नॉट इवन, मैं सारा, जब मेरा एपिसोड ख़त्म हुआ, इतनी बुरी हालत थी मेरी कि मैं सारा दिन सिर्फ खिड़की देखता रहता था. क्योंकि वहाँ से सनलाइट आती थी कि कब शाम हो जाए और मैं सो जाऊँ. क्योंकि लकीली उस टाइम पे भी मुझे सिर्फ द ओनली सॉलेस वॉज कि मेरे को नींद आ जाती थी. तो मैं शाम होते ही जैसे ही सूरज ढलता था मैं सो जाता था. और जैसे ही सुबह 6 बजते थे मेरी नींद खुल जाती थी, बट मैं बेड से उठ नहीं पाता था. तो मैं सारा दिन सिर्फ या घड़ी देखता रहता था या देखता रहता कि खिड़की में से कब अंधेरा हो जाए और मैं सो जाऊँ. आई थिंक वो पार्ट था जब व्हेन आई हैड हिट क्लिनिकल डिप्रेशन. आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट बिकॉज आई वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग. और वो 1-2 महीने बिल्कुल जब एब्सोल्यूट हालत ख़राब थी, वो 2-3 महीने चला था टाइम. तो ये 1 साल का पीरियड था ओवरऑल, लाइक यू डिफाइंड समवेयर इन 2014. मैं इसको 1 साल का पीरियड बोलूँगा. Jan 2015 टिल मार्च अप्रैल 2016, कि जब तक आई वॉज स्टिल स्ट्रगलिंग. क्योंकि जब पहली बार हुआ, यू डोंट इवन नो व्हाट हैज़ हिट यू. आई वॉज
मैंने तो कभी सुना भी नहीं था इसके बारे में. Correct. एंड क्योंकि अपने आप से ही आपको यकीन नहीं होता ये आपके साथ हुआ क्या है. हाउ कुड आई लूज माई मेंटल बैलेंस Yeah, at the age of 30. at the age of 30 when you have Yeah. had no symptoms prior Yeah. to that. तो वो रियलिटी एक्सेप्ट करने में ही मुझे बहुत टाइम लग गया था. एंड दैट वाज 6 महीने तो मुझे सिर्फ इसको एक्सेप्ट करने में लगे थे कि ये हुआ है मेरे साथ. नाउ व्हाट, बिकॉज आई हैड क्विट माई जॉब एंड एवरीथिंग. देन आई स्टार्टेड स्टडीइंग अबाउट द इलनेस जितना भी मैं पढ़ सकता था, जस्ट टू मेक माई सेल्फ अवेयर कि बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है, किस भला का नाम है. So, if I ask you this कि अब तक ये पैसे वाला एपिसोड हो गया था? हाँ, Before you crashed? it was in the manic episode. It was in the manic episode. This was your first manic episode. Yes. And then you crashed in Correct. April. ठीक है, Correct. 1 साल के ड्यूरेशन में you crashed. Yeah. And then you started studying about it कि कुछ तो हुआ है. तो this was your first level of awareness कि यहाँ पे मुझे थोड़ा realization होने लगा कि कुछ तो है. This is not normal. How would I feel so great at like 6 months ago and feel so shitty like in a month? Correct. Same example कि मैं चल रहा था और I am the high, I am like feeling the king of this world to now being कि यार सब कुछ लूट गया मेरा. Correct. Right? ये हुआ क्या है मेरे साथ? ये हुआ क्या? What has hit me? And the more important point was when you started realizing कि कुछ तो हो रहा है, was it because of your own self-awareness or somebody started like from the people you started getting this feedback, maybe from your close family कि Rajat the behavior is not right or something like that? मैनिक एपिसोड में ऑब्वियसली व्हेन आई स्टार्टेड ट्रबलिंग पीपल बट उस टाइम पे आप किसी की सुनते नहीं हो. उन्होंने बोला डॉक्टर के पास चलो, बट उस टाइम पे यू आर नॉट इन रियलिटी ना. तो मैं नहीं गया. उस टाइम पे आप किसी की नहीं सुनते. यू आर इन योर ओन वर्ल्ड. इट्स व्हेन द एपिसोड एंडेड आई क्रैश्ड. मैं शिवर करता था बेड में. तब मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन करके बोला प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास ले चल, आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड टू मी. तब वो मेरे को विमेंस यहाँ पे है हॉस्पिटल, वहाँ लेके गए थे. आई मेट अ साइकाइट्रिस्ट एंड देन ही सेड दैट दीज आर यू हैव बीन डायग्नोज्ड विद बाइपोलर डिसऑर्डर. तब तक मैंने इस बीमारी का नाम भी नहीं सुना था. थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए. अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए. अंटिल देन कीप ड्रीमिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.